Going into the thoughts, and then I was pulling myself again, going into the thoughts. So like, I would not say कि proper पूरा वैसे gratitude होके I could sleep because बार-बार thoughts आ रहे थे. That is okay. That is okay. That is completely okay because that's your first day and ऐसा थोड़ी है कि हम लोग एक ही बार में पूरा फोकस कर पाएंगे. It is not that. आपको टाइम लगेगा. That is completely okay. You can take your time. 2 दिन 3 दिन. It is just that when you scan your day, we should not think of anything negative. And it will take time. ठीक है, कोई बात नहीं. कल नहीं पूरा कर पाए, आज ट्राई करेंगे वापस से. That's okay, no issue. But did you write your blessings? I wrote my blessings. For one thing, what happened, like आजकल क्या होता है, मेरे को मॉर्निंग में I just 4 बजे 5 बजे मेरी आँख खुल जाती है. तो उस समय I just saw it's 5 o'clock. It's like whatever Bela, whatever you call it. So I was just doing it in my mind, but I wrote like 8:30 9 o'clock. No. You will. बहुत अच्छा ही बात है ना. If you're getting up at that time. अब जैसे खुल जाती है. हाँ, तो what I do is like even my husband is sleeping in the room and he doesn't like the light on. So what I do is मैं तो अपना कॉपी पेन बाहर ही रखती हूँ. मैं बाहर आके लिख लेती हूँ. Because that is my time of waking up ना. तो then मैं But बाहर that ही is not my time of waking up. You have to wake up at that time because that is the best time to wake up. That is the best time to wake up, and believe me, you can accomplish so much. कितना कुछ कर लेते हैं वो सुबह के 2 घंटे में. मुझे लगता है मेरा कितना काम हो गया है. That's true. If you wake up early, like you have like big day. एकदम. तो अच्छा, let us listen to what you've written. एक या दो blessing बताओ अपना. I'll tell you. अच्छा, I was just going with the flow. I was not reading again कि मैं क्या right लिखी हूँ, wrong लिखी हूँ. I don't know because मेरे को लगा कि पता नहीं. Did you read it again? Because No, the I didn't. practice was you have to write and read it again and then be grateful. Which I did not because I have guests at home. लिख ले मेरे लिए वही task था कि ठीक है. I'm writing. इसीलिए बोल रहे सुबह 4 बजे उठ जाओ. सब गेस्ट सोते रहते हैं उस समय. So I had written like, I'm truly blessed to have this mummy in my life. Thank you, God, for giving this mummy in my life because she always loved me unconditionally. Thank you. This is the first thing which popped in my mind. Yes, but then this mummy क्या? तो mummy that mummy भी कोई है क्या? No, I thought just I started my mummy. My mummy. My mummy. I am truly blessed. या देखो इसमें कैसे लिखा हुआ है. If you writing in English, तो यहाँ पे कैसे हम लोगों को दिया हुआ है. I am truly blessed करके दिया हुआ है. I am truly blessed to have my mummy in my life because ठीक है. तो that is the way you will write it. और बोलो. एक मैंने लिखा है, I'm truly blessed to have Dadima in my life because she taught us how to deal in life. Thank you, thank you, thank you. ठीक है. How to deal in life? Deal in life with what? I mean, life के problems actually. So problems लिखना नहीं था. नहीं तो how to be confident in life? She used to teach us like values basically. हाँ तो वो लिखो ना. She taught us the values of life, how to be a better human being. उस तरह से लिखो. Okay. ठीक है. Do not leave your sentences incomplete because जब when you are unable to complete the sentence, तो यूनिवर्स को या भगवान जी को कैसे समझाएंगे हम क्या बोल रहे हैं. Okay, okay. So just one more. There was one staff and it was very small. तो मेरे को उसकी भी याद आ गई. हाँ So तो I'm truly blessed to have staff Mohan in my life because he used to take care of me a lot. हाँ तो वो the staff मत लिखो. Then what do I write? I am truly blessed to have Mohan in my life. Okay, okay. खाली ऐसे ही लिखो. Because he used to take care of me, he brought me up. जो भी तुमको लिखना है, but staff मत लिखो वहाँ पे. ठीक है. Okay, चलो. Very good. संगीता जी, would you like to read today? कि आप क्या लिखे हैं? आप म्यूट हो गए हैं. Okay, she is mute. Anyways, yesterday's practice everybody did. आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज.
अच्छा, मैं क्या न्यामते हाँ, बताऊं क्या? न्यामते बताइए, आपने कैसे लिखा है बताइए। अच्छा, मैंने आज लिखा है, थैंक्स यूनिवर्स, आपने अपनी रची हुई सुंदर दुनिया में रहने के लिए एक और दिन दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। बट संगीता जी, ये तो वो फॉर्मेट ही नहीं है जो हिंदी में हमको दिया हुआ है। मैं समझी नहीं, 4 कैसे? फॉर्मेट इंग्लिश के और 4 फॉर्मेट हिंदी के दिए हुए हैं, जिस तरह हाँ। से बुक में बताया गया है ना, हमको अच्छा, एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। ठीक है। ठीक है। तो अगर आप ठीक है। बोलेंगे तो मैं ग्रुप में इसको आज वापस पोस्ट कर दूंगी। बट कल आपने जैसे मुझे बताया था ना, एक दो आप कुछ पढ़े थे कल, तो वो तो मेरे ठीक। को ठीक लग रहा था। एक बार वापस कोई नहीं और नहीं, बताइए। एक मिनट होल्ड करना, मैं बताती हाँ हूँ। ठीक है, दैट्स ओके। तब तक यस्टरडेज प्रैक्टिस डिड ऑल ऑफ अस डू? ठीक है, मैं बोलूँ? हाँ जी, बोलिए। थैंक यूनिवर्स, मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छा शरीर दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। संगीता जी, मुझे लगता है कि मैं वापस से इसको भेजती हूँ। आपने अपने बॉडी के लिए लिखा है, तो आप जी। ऐसे करिए, मैं मेरे शरीर के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि। ठीक है। क्योंकि या मैं ठीक मेरे है। बॉडी के लिए, हिंदी इंग्लिश, अच्छा ठीक है, आप कंबाइन भी कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू, ऑल राइट, हम्म। कोई बात नहीं है। या मैं अपने शरीर के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, तहे दिल से मैं अपने शरीर के लिए कृतज्ञ, या मैं आपको, अच्छा ये हम बोले थे ना कि अपने कोई की तरफ डायरेक्ट करके भी लिख सकते हैं, बिकॉज आज क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं ना, तो इतना नहीं समझ आ रहा है। बट जब हम लोग लिखने लगते हैं ना, तो फीलिंग्स कैसे आएगी। आज अगर हम ऐसे ही सपोज किसी ने गिफ्ट दिया हमको, हाँ, और मैंने खाली थैंक यू बोल दिया, मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी अ, उसने उसने भी नहीं, वो गिफ्ट आया है, थैंक यू। बट अगर हम ऐसा बोलते हैं कि उसने ये गिफ्ट दिया है, उसको बहुत बहुत थैंक यू, तो किसी कोई आपको कुछ दे रहा है ना, ये शरीर तो आपको किसी से मिल रहा है, जी। राइट। ये शरीर आपको, आप भगवान बोलना चाहे, कृष्ण बोलना चाहे, शिव जी बोलना चाहे, यूनिवर्स बोलना चाहे, अल्लाह बोलना चाहे, आपको जिसको भी रेफर करना है, कोई की तरफ रेफर करके बोलिए, तो ना अंदर से फीलिंग्स ज्यादा आती है। ठीक है। ओके। जैसे कि मैं भगवान के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं मेरे शरीर के लिए भगवान के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि, ठीक है। तो इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने एक और लिखा, देखो जो ठीक है। जी। थैंक यूनिवर्स, मैं कृतज्ञ हूँ एक मिनट। मैं कृतज्ञ हूँ अपने बच्चों के लिए क्योंकि ये बहुत संस्कारी है, संस्कारी, धीरेवान और ऐसे लिखा हो, ठीक है, ऐसा कि नहीं? थैंक्स यूनिवर्स ऐसे मत लिखिए, मैं यूनिवर्स के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं ठीक है। यूनिवर्स के प्रति अपने बच्चों के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, ऐसे ठीक करके है। लिखिए। ठीक है। ठीक है। मैं ठीक। आपको ना फॉर्मेट वापस ग्रुप में आज भेजती हूँ, आप एक बार अपना उनको वापस देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। कल और क्या था हम लोगों का असाइनमेंट, कुछ था ना, हाँ, मम्मी पापा के लिए 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना था। हाँ जी, लिखे है मैंने। वेरी गुड। एक अ, बताइए खाली। वैसे उसमें ना कुछ नहीं है, आप अ, जैसे आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, आपको उसी तरह से ही लिखना था। तो आप अपने उसमें लिखेंगे, मैं मेरी मम्मी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लिए ऐसा ऐसा किया। ठीक ठीक है। है। इस तो तरह मैंने से। ऐसे लिखा, थैंक्स पापा, मुझे इस दुनिया, मम्मी पापा इस दुनिया में लेके आने के लिए, ऐसे नहीं? नहीं संगीता जी, ऐसे नहीं, मम्मी ठीक है। पापा अलग अलग लिखेंगे। नहीं, मम्मी के बस लिए पहली बस, लाइन ऐसे लिखी है, नहीं आगे तो फिर। नहीं नहीं नहीं, मम्मी ठीक है। पापा को एक साथ कोशिश करिए, अभी तो हम लोग शुरू ही कर रहे हैं ना, ठीक शुरू है। ही कर रहे हैं, अलग अलग ही लिखिए। ठीक है। ठीक है। एनीबडी ठीक एल्स हु है। वांट्स टू शेयर अपने पेरेंट्स के लिए कैसे लिखा है उन्होंने? You will give some examples because मम्मी पापा are taken for granted, तो मेरे को हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन प्यार करते बहुत, सब कुछ जरूरतें पूरी करे और ऐसे, मैं दैट्स व्हाट आई एम नॉट एबल टू 10 थिंग्स। ओके। मम्मी के लिए फर्स्ट थिंग,
She bore you in her womb for 9 months. Okay. Then she nourished you with her blood. ठीक है. She bore so much pain to deliver you into this world. ठीक है. फिर उन्होंने आपको अपना दूध पिलाया, आपको नरिश किया, आपको क्लीन और ड्राई रखा, आपको तैयार किया, आपको नहलाया, आपकी नैपीज चेंज करी, कितना कुछ किया. ठीक है. फिर शी वॉज योर फर्स्ट टीचर. शी टॉट यू हाउ टू स्पीक, शी टॉट यू टू बी वेल मैनर्ड. मतलब देर इज नो एंड. कितना बोलूंगी, देर इज नो एंड. ओके. पापा के लिए मतलब he is the reason you are in this world. Okay. Next, he gave you his name. उन्होंने अपना परिवार दिया आपको. ठीक है. कि आपकी आइडेंटिटी है उनसे. राइट. देन उसके बाद आप जो कुछ भी एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप हॉस्पिटल में बॉर्न हुए थे तो वो हॉस्पिटल का बिल्स पे किया उन्होंने. आपको वैक्सीन्स लगे, डॉक्टर के पास लेकर गए, आप कपड़े पहने, जूते पहने, जो भी कुछ, एवरीथिंग वाज पेड बाय योर डैड. यू वेंट टू स्कूल, ऑल द स्टेशनरी, ऑल द बुक्स, ट्यूशन फीस, एवरीथिंग. आप जिस घर में रहते थे, घर में भी आप, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी था, पानी था, फर्नीचर था, टीवी था, सब कुछ, एवरीथिंग वाज पेड फॉर बाय योर डैड. ठीक है. सो देर इज नो एंड. अगर हम लोग 365 दिन भी लिखेंगे तो उनकी तो नियामतें खत्म ही नहीं हो सकती है. ठीक है. वी जस्ट हैव टू थिंक. ऑलराइट. सो आज हम लोगों का जो चैप्टर है ना, इट इज एग्जैक्टली ऑन दिस ओनली, ऑन रिलेशनशिप्स. एंड इट इज एन अमेजिंग चैप्टर. Who will read today? आज अंशु आंटी नहीं है, उन्होंने बोला है आप किसी से भी रीडिंग करा लीजिएगा, आज मैं नहीं आ पाऊँ. अच्छा. I have a very good sharing है कि we have a first timer participant in our group who's listening to recordings. ठीक है. And she took her son is very young. वो अपने सन को स्कूल लेकर गई ना, तो आने के वक्त उन्होंने बोला कि जितने भी गार्ड्स हैं स्कूल के, उनको थैंक यू बोलो. एंड बच्चे ने सबको थैंक यू बोला. एंड गाड़ी में बैठ के द चाइल्ड इंसिस्टेड ऑन टेलिंग थैंक यू टू ऑल द ट्रैफिक गार्ड्स ऑन द रोड. सो द मदर वॉज सो हैप्पी एंड ऑल द ट्रैफिक गार्ड्स वर आस्किंग कि ये हमको थैंक यू क्यों बोल रहे हैं. They did not understand ये छोटा बच्चा हमको थैंक यू क्यों बोल रहा है. बट दैट इज सो नाइस कि आप देखिए, वो इतने छोटेपन से वो अपने बच्चों में ये वैल्यू डालना चाह रही है. दैट इज सो गुड. ओके. सो जस्ट नाउ सिर्फ आधी घंटा पहले उनका मैसेज आया था एंड आई इमीडिएटली थॉट आई शुड शेयर इट इन द ग्रुप दैट वी शुड ऑल ट्राई. बट हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो when they want to do it, they will do it. We cannot force them to do it now. But it is very nice when you inculcate these habits when they are very, very young. Okay. Who would like to read now? I'll read. कौन बोल रहा है? Please अपना वीडियो ऑन करें. हाँ, ऑन है. Let me see. हाँ, निधि दीदी. Okay. Yes. हाँ, look at this picture. यहाँ पे एक एल्बम है और एल्बम में देखिए 3 फोटो लगाई हुई है. 3 फोटो बाहर निकाला हुआ है इनफैक्ट एल्बम से, और उनके ऊपर बहुत रोशनी है. जैसे कि हमने बोला, आज हम अपने कोई 3 रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे. 3 ऑफ आवर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स. ठीक है. हमको उनके ऊपर काम करना है. तो आज उनके ऊपर बहुत रोशनी है और हम देखेंगे कि हम उनको ग्रैटिट्यूड करके, अव्वल तो हम सीखेंगे ना हमको उनको कैसे ग्रैटिट्यूड करना है. हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड करके हम उनके साथ जो भी हमारा रिलेशनशिप है, हम उसको और कैसे बेटर बना सकते हैं. अब आप बोलेंगे कि क्यों, जो रिलेशनशिप ऑलरेडी अच्छा है उसके लिए हमको क्यों ग्रैटिट्यूड करना है. जो भी रिलेशनशिप, आज आप जो भी चीज, आपके पास बहुत पैसे हैं या आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो वो कितने दिन तक रहेंगे. दैट मीन्स इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर योर रिलेशनशिप,
That means you're taking it for granted. जैसे अभी रिंकू ने बोला, we tend to take our parents for granted. So that means you're not appreciating that relationship. If you're not appreciating that relationship, वो कितने दिनों तक अच्छा रह पाएगा? अगर आप अपने स्पाउस को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप कभी उनके लिए कुछ अच्छा नहीं बोलेंगे, आप अपने बच्चे को कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, दिन भर डांटेंगे, झिड़केंगे, तो वो ही रेसिप्रोकेट करेंगे ना. वो कितना दिन तक वो रिलेशनशिप आपका अच्छा चलेगा? सो जो अच्छा, एंड another thing is that we are just starting our practice. तो अभी तो हम कितना, अगर 2 दिन का हमने काउंट आवर ब्लेसिंग्स का प्रैक्टिस किया है तो सिर्फ 20 ब्लेसिंग्स. ओके, इमेजिन यू बीन मैरिड फॉर 20 years. ओके, अगर रोज हमने एक कंप्लेंट करी है अपने हस्बैंड के लिए. सपोज आप रोज अपनी मम्मी से बात करते हैं और आप रोज अपनी मम्मी को बोलते हैं, मम्मी मेरा हस्बैंड मेरा एकदम नहीं सुनता. Just one complaint, but you're repeating it every day. 365 into 20 years. You have been telling this every day. Let us just take one complaint, but you generally don't do one complaint. एक के साथ हम 3-4 कुछ बोलते हैं. मैं तो सिर्फ एक ही बोल रही हूँ. इसका मतलब है 7,300 complaints in 20 years. 1 complaint is equal to 10 blessings. अगर आपको आपकी 1 complaint को negate करना है, इसका मतलब है आपको 10 blessing उसके लिए लिखना होगा, right? But जब हमने 7,300 complaint कर दी है 20 साल में, तो कितना लिखना होगा? 73,000 blessings उस इंसान के लिए लिखनी होंगी जिसके साथ कि हमको हमारा रिलेशनशिप अब ठीक करना है. Getting my point? So इसीलिए हम we have decided to take people who are closest to us, कि उनके साथ जब हमारा रिलेशनशिप जो अच्छा है वो और बेटर होगा, तो हमको बिलीव होगा कि हाँ, मैजिक्स एक्चुअली हैपन, एंड देन यू नो, और हम दिल से ये प्रैक्टिस कर पाएंगे. ठीक है? ओके, प्लीज स्टार्ट. Day 3, magical relationships. Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. Yes, man, आज आप अपने ऊपर लेके देखिए, हम लोगों को सबको ना आसपास लोग चाहिए. आज अगर सुबह से लेके रात तक आप घर में अकेले रहते हैं, आपको कैसा फील होता है? आपको बहुत सुस्ती सा फील नहीं होने लगता है कि ओ गॉड अच्छा नहीं लग रहा, यू वांट टू टॉक टू समबडी? हाँ, इमेजिन अ टाइम व्हेन यू आर अलोन ऑन एन आइलैंड. ओके, कोई नहीं है वहां पे, बहुत सुंदर सा बंगलो है, बंगलो के बाहर एक झूला है, आपकी सारी मनपसंद चीजें हैं खाने की, आपके पास एक बोट भी है, आपको चलाना आता है, आप जहां चाहे आप जा भी सकते हैं आसपास. इट्स अ बोट, आप आसपास ही जा सकते हैं. ठीक है, सब कुछ है आपके पास, बट यू डू नॉट हैव अ फोन. You do not have a satellite phone, you do not have a mobile phone, you do not have any way to communicate with the outside world. आप कितना दिन उस आइलैंड पे खुश रह पाएंगे? However much, you know, मेरे पास टीवी है, मेरे पास बुक्स है, मेरे पास झूला है, वाओ क्या ऑसम व्यू है, वेव्स है, मैं सनबाथ कर सकती हूँ, मैं बीच पे डांस कर सकती हूँ, सब कुछ ठीक है, बट कितना दिन? 1 दिन, 2 दिन, उसके बाद? We all need people in our life. हाँ, एंड वी ऑल, मतलब कोई भी, कई बार तो ऐसा लगता है ना, बाबा कोई दिख जाए, कोई तो दिख जाए, खाली एक कोई दिख जाएगा, उसी से ही लगेगा कि यस आई एम नॉट अलोन. इजंट इट? यू फील दैट वेज. तो अभी रोंडाबन बोल रहे कि कुछ भी करने का मजा तभी है जब हमारे आसपास लोग हों.
मैंने बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाई है बट कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई अप्रिशिएट करने वाला ही नहीं है। मैंने क्या अमेजिंग डिश बनाई है आज, वाह क्या पालक पनीर बना है, बट कोई अप्रिशिएट ही नहीं करेगा उसको, तो क्या फायदा है उसका? कोई और खाएगा नहीं, कोई मैं किसी और को सर्व ही नहीं कर सकती, तो किसके लिए बनाऊंगी मैं? अपने लिए तो आई कैन जस्ट ईट, मे बी आई जस्ट ईट अ प्लेन आलू एंड फलका, आई जस्ट ईट दैट, व्हाई विल आई कुक पालक पनीर फॉर माई सेल्फ? ओके, वैसे ही वो बोल रही है कि कोई नए नए जगहों पे जाने का मन नहीं करेगा, कुछ देखने का मन नहीं करेगा, देयर विल बी नो मूवीज, बिकॉज मूवीज कौन बनाएगा? लोग होंगे तभी तो मूवी बनेगी, गाने बनेंगे, कोई है ही नहीं दुनिया में तो क्यों बनेंगे ये सब? तो जिंदगी कितनी मोनोटोनस हो जाएगी तब, राइट? प्लीज कंटिन्यू। Experiences with other people that give you life, joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life एक मिनट, more than affect any. your life more than anything else, yes. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. यस, अगर आपके पास अच्छे रिलेशनशिप्स है, मतलब अगर आप अपने परिवारजनों के साथ खुश हैं, यू हैव एन अमेजिंग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, आप ऑफिस जाते हैं, आपका वहां पे भी सबके साथ संबंध बहुत अच्छा है, तो क्या होता है, एक मेंटल पीस होता है। हाँ, आपके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है, यू फील गुड। तो फीलिंग गुड इज व्हाट, फीलिंग गुड इज अ इज व्हेन यू फीलिंग गुड यूर इन द रिसीविंग मोड, मतलब कि आप अपने सपनों की दुनिया को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन यू आर फीलिंग गुड, आपकी सेहत अच्छी रहती है, आप अपने लाइफ में पैसे अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक्चुअली तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, बट रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके पास चाहे जितने ही पैसे हों, अगर कोई रिलेशन, आपके घर में कोई नहीं है, कोई आपके पास आसपास फ्रेंड्स नहीं है, तो आप किसके साथ वो पैसा एंजॉय करेंगे? ठीक है, आपकी सेहत भी बहुत अच्छी है, पर आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी सेहत अच्छी है, आप कोई गेम्स नहीं खेल सकते बिकॉज देयर इज नोबडी अराउंड यू, आप कोई स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप कोई मूवी देखने नहीं जा सकते, कुछ नहीं, बिकॉज देयर इज नोबडी अराउंड यू। तो फॉर एवरीथिंग यू नीड रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स अगर अच्छे हैं तो आप अपने लाइफ में अपने सपनों की दुनिया बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। ओके, एंड उसके लिए आज ग्रैटिट्यूड करना सीखना हम लोगों को बहुत जरूरी है, बिकॉज ग्रैटिट्यूड से अगर आपके रिलेशनशिप्स अभी अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, थोड़े कम अच्छे हैं तो अच्छे हो जाएंगे, और प्रैक्टिस करते करते वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Science is now confirming the wisdom of great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about one another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every complaint, and the relationships will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. यस, अब देखिए क्या बोल रही है रॉन्डा बर्न की साइंस, वो प्राचीन काल के जो भी हमारे संत महात्मा थे, जितने भी हमारे वेद कुरान वगैरह में भी सब में लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिलेशनशिप्स को या कोई भी हेल्थ को, पैसे को, कोई भी चीज को बरकरार रखने के लिए या उसको अपनी जिंदगी में लाने के लिए हम लोगों को ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। जो भी लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग भी उनको जो भी कुछ मिला है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, तो फिर वो अपने लाइफ में बहुत खुश रहते हैं।
ठीक है, उनका उनके परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ संबंध अच्छे होते हैं। ठीक है, आजकल अगर आप देखें ना, मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चे लोग बोलेंगे हम लोगों को तो अकेला रहना है, हम लोगों को किसी के साथ नहीं रहना है। ओ गॉड, पेरेंट्स इन लॉ के साथ नहीं रहना है, बड़ों के साथ मैं तो एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। ये सबका मतलब दे हैव बिकम सो सेल्फ सेंटर्ड कि वो लोग वैल्यू नहीं समझते हैं रिलेशनशिप्स की। ठीक है, और अगर रहते भी है साथ में तो फिर इतनी कंप्लेंट करते हैं। आज सपोज आप अपने मदर इन लॉ के लिए, आप जब से आपकी शादी हुई है आप रोज उनके लिए कंप्लेंट करते हो, ओह गॉड कभी भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझती है, कितना तकियानुसी बात करती है, एकदम जाहिल गंवार है, एकदम सुनती नहीं है मेरा कोई बात। हाँ, और फिर आप बोलेंगे कि इसको तो जो भी बोल लो, इनको तो कुछ समझ नहीं आता, जब देखो तब चिक चिक झिक झिक करती रहती है, हर समय शिकायत शिकायत। आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आप भी तो वही कर रहे हैं। यू एज अ चाइल्ड कैन ट्राई टू बी ग्रेटफुल, लुक फॉर द थिंग्स यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर इन हर। ठीक है, आप ऑफिस जाते हैं, आप अपने बॉस के लिए भी एकदम ऐसे ही बात करते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उसको तो मेरी कभी हार्डवर्क की कोई कदर ही नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं आता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मैं सुबह से रात तक उसके लिए पैसे कमा रहा हूँ, पर वो तो मेरी वैल्यू ही नहीं करता, ऐसे कंपनी में तो काम ही नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को तो कभी कोई से वो लोग खुश नहीं रह सकते हैं, हमेशा मेरी प्रमोशन को नजरअंदाज कर देते हैं, जब देखो तब मुझको डांटते रहते हैं, उनको अच्छे से बात ही नहीं करनी आती। हाँ, आप टीचर के लिए बोलते हैं, वो तो देखो हमेशा शी इज ऑलवेज बायस्ड अगेंस्ट मी, शी विल नेवर, उसको पढ़ाना ही नहीं आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से बन के आ जाते हैं टीचर्स। आप देखिए, आप अपने लाइफ में बचपन से लेकर आज आज तक आपने अपने रिलेशनशिप्स के लिए कितनी कंप्लेंट करी है, कितनी कंप्लेंट करी है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक कंप्लेंट को जब हम करते हैं तो अगर हमने उनको 10 बार अप्रिशिएट किया है तो वो 10 बार अप्रिशिएट किया हुआ ना वो खो जाता है, क्योंकि हमने उनके लिए एक बार कंप्लेंट कर दी है। और आज हम 40, 45, 50 में भी 30, 35, वॉट एवर आर एजेस, आई थिंक जहाँ जितने भी लोग हैं यहाँ पे दे आर आई थिंक एटलीस्ट 30 के तो होंगे। ठीक है, तो आपने जितनी भी कंप्लेंट करी है अपने 30 सालों में, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ की होंगी। हाँ, तो अब एक कंप्लेंट के लिए आपको 10 ब्लेसिंग लिखनी पड़ेगी। आपने कितनी कंप्लेंट करी है आप देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बोल रही है कि अगर आप अपने स्पाउस के लिए कंप्लेंट करते हैं, हाँ, अगर आप अपने स्पाउस के लिए कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट 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 कंप्लेंट, और उनके लिए कभी कुछ अच्छा नहीं सोचते, उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो वो रिलेशनशिप जो है वो एक डिवोर्स तक भी जा सकता है। अच्छा, डिवोर्स तक क्यों जा सकता है? माँ बाप के साथ तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि डिवोर्स ले लेंगे, क्योंकि वहां आपके पास चॉइस नहीं होता है। हाँ, सिबलिंग्स के लिए आपके पास चॉइस नहीं होता है, लेकिन स्पाउस के लिए आपके पास चॉइस होती है, आप बोलेंगे हम डिवोर्स ले लेंगे, वो रिलेशनशिप आपका खत्म हो जाता है। तो कोई भी कंप्लेंट जब भी जैसे ही आप देखें कि आपके मुंह से कोई कंप्लेंट निकली है, इमीडिएटली, कोई भी हो, कोई भी, अगर आपने अपने स्टाफ को घर में, अगर आपने अपने डोमेस्टिक हेल्प को या कुक को आपने कोई दिन डांट दिया, हाँ, इमीडिएटली जाइए अपने रूम में, 10 मिनट 15 मिनट बाद आपका जब दिमाग शांत हो जाए ना, जाइए अपने कमरे में, कॉपी पेन उठाइए और उनके लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिख डालिए, या आपने जितना भी उनको कुछ बोला है उतना नंबर ऑफ, मतलब इंटू 10 करके उतने ग्रैटिट्यूड्स लिख डालिए। Okay, and this is only, I'm just telling you about your helps. You can do it for your parents-in-law, for your spouse, for your children, for your parents, for your siblings, for your boss, for your colleague, friend, किसी के लिए भी, जिसके लिए भी आप कंप्लेंट करें,
आप मतलब इमीडिएटली जाइए, अपना कॉपी पेन उठाइए और ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखिए आप कितना अच्छा फील करेंगे और सामने वाले के साथ आपकी रिलेशनशिप भी जो है वो बरकरार रहेगी, वो डिटीरियोरेट नहीं होगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you are truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't be able to see the things you used to complain about. We यस, can only be अभी क्या बोल रहे हैं, रोंडा बर्न बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड जब आप करते हैं, जब अच्छा ग्रैटिट्यूड आप कई तरीके से, यहाँ पे तो खैर हम लोग लिखने को बोल रहे हैं, जितना आप लिखते हैं ना उतना आप अंदर से और फीलिंग्स आपकी बढ़ती है। ओके, बिकॉज आपके पांचों सेंसेस फिर काम करते हैं। ठीक है ना, तो जितना हम लोग लिख के ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना अच्छा है। और ग्रैटिट्यूड करने से हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो और बेटर होते हैं। जितना आप जब ग्रैटिट्यूड करना, सपोज आप अपने स्पाउस के लिए आप सडनली यू स्टार्टेड राइटिंग अ लॉट ऑफ, यू स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल, आप उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा लिखने लगे, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हिम और हर कि उसने मेरे लिए ये किया। सपोज अगर कोई जेंटलमैन है और वो बोल रहे हैं कि मैं मेरी बीवी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो रोज मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। ठीक है, फिर वो बोलेंगे कि वो रोज ध्यान रखती है मेरे कपड़ों का, कि मैं ऑफिस जाऊं तो मेरे कपड़े हमेशा धुले हुए आयरन होके आते हैं, मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो मेरा लंच पैक करके देती है, वो मेरा घर संभालती है और मेरे बच्चों को संभालती है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है, जब मैं बीमार पड़ता हूँ मेरी सेवा करती है। वी हैव मतलब शी गिव्स मी लव, शी गिव्स मी फिजिकल लव। जो भी कुछ आपको जो भी कुछ लिखना है, जब आप सिमिलरली जब आप अपने हस्बैंड के लिए लिखते हैं, तो जब आप ऐसा लिखते हैं आप देखेंगे कि वो सिर्फ वो आपका रिलेशनशिप नहीं बदलेगा। और वो रिलेशनशिप कैसे बदलेगा, आप लिख रहे हैं बट आपको लगेगा कि वो सामने वाला बदल रहा है। सामने वाला नहीं बदलता है, आपके देखने का नजरिया बदलता है। जहां आप छोटी छोटी बातों में कंप्लेंट किया करते थे, अब क्योंकि आप ग्रेटफुल रहने लगे, आपको उनकी, अब हो सकता है आपके हस्बैंड रोज कॉमन कंप्लेंट की गीला तौलिया बेड के ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, या आपको लगता है कि जब भी आप खाना बनाते हो कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, या वो कभी आपकी बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, बट जब आप बाकी चीजों पे ध्यान फोकस करना लगेंगे, जब आप उनकी अच्छाइयों पे फोकस करने लगेंगे, उनके लिए ग्रेटफुल होने लगेंगे, जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल होंगे तो उसमें तो आपको बुराई नहीं नजर आएगी ना। बिकॉज एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट कंप्लेन एंड बी ग्रेटफुल बोथ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी थैंक यू बोल रही हूँ और मेरे अंदर ही अंदर कुछ कंप्लेंट चल रहा है, वैसे नहीं होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आइदर आई कैन बी ग्रेटफुल और आई कैन कंप्लेन, आई कैन नॉट डू बोथ। ठीक है, तो जब आप कोई चीज के लिए, कोई इंसान के लिए आप ग्रेटफुल होने लग जाते हैं तो उनमें आपको दोष नहीं दिखता है, आपको उनमें कोई कंप्लेंट नहीं नजर आती, कोई नेगेटिव बातें नहीं नजर आती हैं, आपका नजरिया बदल जाता है। तो उससे ऑटोमेटिकली आप
आपका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी के भी सामने आप उनकी कंप्लेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आप पॉजिटिव वाइब्स देंगे। योर वाइब्स मेक योर ट्राइब। ठीक है, आप जैसा सोचेंगे, जैसे वाइब्स देंगे, वैसे ही लोग आप आसपास में अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही वाइब्स भी आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप दुनिया में नेगेटिविटी देंगे, यूनिवर्स में आप कोई इंसान के प्रति नेगेटिविटी देंगे, तो उससे भी तो आप नेगेटिविटी पाएंगे ना। अगर आज मैं रोज रोज मेरे मदर इन लॉ के लिए कंप्लेंट करूंगी, तो यूनिवर्स में तो मैं वो ही दे रही हूँ ना, मैं नेगेटिविटी दे रही हूँ, तो उन तक तो वो नेगेटिविटी पहुंच रही है, तो वो भी तो मुझको रिटर्न में नेगेटिविटी ही देंगी ना, है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने मेरा सोचने का तरीका चेंज कर लिया है, मैंने उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया है, तो अब क्या हो रहा है, मैं उनको पॉजिटिविटी दे रही हूँ। मैं उनको पॉजिटिविटी दे रही हूँ, तो वो बदले में मुझे क्या देंगी, वो भी पॉजिटिविटी देंगी, राइट। सो सिर्फ सिर्फ मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, और मुझे क्या लग रहा है कि सामने वाला चेंज हो गया है। बट सामने वाला नहीं चेंज हुआ है, हमारा देखने का नजरिया, हमारे थॉट्स चेंज हो गए हैं, तो सामने वाला वो ही रिस्पॉन्ड कर रहा है जो हम उसको दे रहे हैं। ओके। प्लस क्या बोल रही है रोंडा बर्न, कि जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, तो आप अपने अंदर भी ना चेंज पाएंगे। आपकी जैसी भी मनस्थिति हो, जब आप ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे, आप पाएंगे कि आप लोगों के प्रति और टॉलरेंट हो गए हैं, आप में पेशेंस आ गया है, आप और अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, और अंदर से ना आपको बहुत खुशी महसूस होने लग जाएगी। यू विल स्टार्ट स्टेइंग हैप्पियर। ओके, प्लीज Yes. कंटिन्यू। We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. थॉर्नटन विल्डर, राइटर एंड प्ले राइट, क्या बोल रहे हैं हमको, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। खजाने क्या हैं हमारे? खजाने हैं हमारे रिलेशनशिप्स। किसी के भी साथ रिलेशनशिप हो, बच्चे के साथ हो, स्पाउस के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कोई के भी साथ रिलेशनशिप हो हमारा, जब हम उनकी वैल्यू करने लग जाते हैं, जब हम उनको वैल्यू देने लग जाते हैं, हम उन्हीं पलों में हमको जीवित कहा जा सकता है। दोज आर द टाइम्स व्हेन वी आर सेड टू बी अलाइव। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to be magically increased, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? यस, अभी ना एक बार 1 सेकंड के लिए सब इमेजिन करिए कि आपके स्पाउस आपको बोल रहे हैं कि तुम जैसे हो, तुम जैसे हो, मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारे बॉडी का कुछ भी, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक, मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहता या चाहती। इमेजिन करिए आपको कितनी खुशी मिलेगी उस समय। Because nobody is perfect in this world. When we do not expect people to be perfect, we start valuing them. हम उनमें दोष निकालना कम कर देते हैं। आज अगर हम में इम्परफेक्शंस है, वी आर नॉट परफेक्ट, हमसे गलतियां होती है, तो सामने वाले से भी तो हो सकती है ना। इवन दैट पर्सन इज नॉट परफेक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। और क्या होता है कि हम
जब बार बार उनके इम्परफेक्शंस के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, हम उस पे बहुत ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, वो हमारे दिमाग में पूरे टाइम घूमने लग जाता, एंड वो कहीं ना कहीं शब्दों का आकार ले लेता है। थॉट्स मेक थिंग्स, हाँ, बट वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। ठीक है, वो शब्दों का आकार ले लेता है। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी श्योर हम सबको बचपन में या अभी भी, जित इतने बड़े हो गए हैं, अभी भी बहुत बार सुनने को मिलता है कि थोड़ा सोच समझ के बोला करो, ऐसे ही कुछ भी मत बोल दिया करो। पहले बचपन में तो एटलीस्ट बोलते थे ना मम्मी पापा की थोड़ा सोच के बोलो, थोड़ा सोचो उसके बाद में कोई भी बात करो, है कि नहीं है? किस लिए? बिकॉज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और कहावत है कि आदमी को अगर आप फिजिकली कोई थप्पड़ मारेंगे ना, वो कुछ दिनों में भूल जाएगा, बट अगर आप उसको शब्दों से अगर आप उसको हर्ट करेंगे तो वो उसके दिल में घर कर जाता है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के यूज करिए। ठीक है, और सोचेंगे कैसे? जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तब आपके वर्ड्स भी पॉजिटिव निकलेंगे। अपने शब्दों को, अपने थॉट्स को पूरे टाइम मॉनिटर करिए। इसीलिए 4 दिन से हम लोग रोज बोल रहे हैं, मॉनिटर योर थॉट्स, मॉनिटर योर थॉट्स। आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Choose 3 of your closest No, relationships. today's magical practice. Okay, sorry. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even in all your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. यस, अब आज की हमारी जो प्रैक्टिस है ना वो इसी बारे में है। इसीलिए हमने बोला टेक 3 of your क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स सो दैट वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर देम एज दे आर। वो जैसे भी हैं हम उनके लिए एज वैसे ही हम ग्रेटफुल हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं उन लोगों के साथ कितने और बेटर हो गए, इतने फुलफिलिंग हो गए। आपको सडनली उनसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग जाएंगे, कोई और शायद आपके लिए और ज्यादा केयरिंग हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से आपके रिलेशनशिप्स ना थोड़े थोड़े और चेंज होने लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने कल बोला था कि 3 फोटोग्राफ्स लेनी है अपनी, 3 फोटोग्राफ्स कोई भी क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स के, लेकिन वो जो रिलेशनशिप्स आप सिलेक्ट करेंगे उनको अभी जीवित होने चाहिए। ठीक है, द रिलेशनशिप्स यू हैव सिलेक्टेड शुड बी, द पीपल शुड बी अलाइव नाउ, एक बात। दूसरा, आप अपना फोटो नहीं ले सकते हैं, आपका रिलेशनशिप हम बाद में उस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे। अभी हम आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप्स बेटर करने का सोच रहे हैं। ठीक है, एंड आप भगवान जी की फोटो भी नहीं ले सकते हैं। द पीपल यू हैव चोजन शुड बी अलाइव। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Once you have selected, चूज 3 of your क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स। okay, नीचे दिखा. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. यस, अब यहाँ पे फोटोग्राफ बहुत जरूरी है। ये नहीं कि वो मेरे सामने है तो चलो मैं सामने जाके ग्रैटिट्यूड कर देती हूँ, नहीं नहीं नहीं।
फोटोग्राफ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। फोटोग्राफ के साथ ही हम ये प्रैक्टिस करेंगे, और आप कोई भी 3 ले सकते हैं। याद रखिए, जब भी आप ये वाली प्रैक्टिस करेंगे, आप रोज भी कर सकते हैं ये प्रैक्टिस, जब भी करेंगे आपको 3 लोग ही लेने हैं। आप 3 लोग रोज सेम भी ले सकते हैं, रोज अलग अलग भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट आपको रोज 3 लोग ही लेने हैं। आप अपने पेरेंट्स को मम्मा पापा सिस्टर ले सकते हैं, ब्रदर ले सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को, बच्चों को ले सकते हैं, आप अपने इन लॉज को ले सकते हैं, बॉस को ले सकते हैं, फ्रेंड को ले सकते हैं, कोई नेबर को ले सकते हैं, कोई कलीग को ले सकते हैं, जिसको भी आपको मन हो कि भाई हाँ उसके साथ मेरी रिलेशनशिप अभी हम थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, या बेटर है हम और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, आप वैसा भी ले सकते हैं, ठीक है। You have to take 3 of your closest relationships. They can be anyone. You have to take their photographs. ठीक है? Please continue. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What about the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoyed doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for you, or supported you. Yes. अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है, कि जब हम उन फोटोग्राफ्स को अरेंज कर लेंगे, तब हमको आराम से, प्लीज आराम से आधी घंटा का टाइम निकाल के तब ये प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये नहीं कि एक फोटोग्राफ हम सुबह करेंगे, एक दोपहर में, एक रात को, नहीं। It has to be done together. All 3 photographs have to be done together. एक के बाद एक हम फोटोग्राफ्स को हाथ में लेंगे और हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ दैट प्रैक्टिस आपके अंदर जो ग्रैटिट्यूड की भावना है वो बहुत बढ़ जाएगी, बिकॉज आप 3 लोगों का के लिए एक के बाद एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा लंबा टाइम के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो जब आप एक लॉन्ग टाइम के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आपकी ग्रैटिट्यूड की भावना जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको उनके फोटोग्राफ्स को देखना है, एंड वी जस्ट हैव टू थिंक अबाउट all the things you can be grateful for each person. सपोज आपने अपनी मम्मी की फोटो ली है, तो उनके बारे में सोचिए, उनकी स्माइल के बारे में सोचिए, उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया उसके बारे में सोचिए, कितना अच्छा खाना बनाती है उसके बारे में सोचिए, उनमें और कोई टैलेंट होगा उनके बारे में सोचिए, या उन मतलब क्या क्या क्वालिटीज हैं, या बहुत पेशेंट हैं आप, मतलब आपको जब भी सपोर्ट चाहिए था उन्होंने आपको सपोर्ट किया, वो सब के बारे में सोचिए। आप अपने फ्रेंड के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, आप लोग क्या क्या एक साथ करते थे, मे बी आप लोग मूवीज साथ में देखने जाते थे, आप लाइब्रेरी साथ में जाते थे, आप लोग कोई स्पोर्ट खेलते थे एक साथ। हाँ, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। आप लोग घंटों फोन में बात किया करते थे, उसके बारे में सोचिए कि आपको कितनी खुशी मिलती थी उससे, ठीक है। यू कैन थिंक अबाउट दोज थिंग्स। या मे बी यू नो कि कभी आप बुक्स स्कूल लेके जाना, कोई बुक भूल गए, उसने आपके साथ अपनी किताब शेयर करी होगी, उसके बारे में सोचिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सोचना है उन तीनों लोगों के बारे में। थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। फिर क्या करना है, प्लीज कंटिन्यू। After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are most grateful for. Look at the photograph for that pass as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic word
Thank you, the address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you, their name for what? For Yes. example, thank you, John, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college. यस, अब क्या करना है, जब आपने सोच लिया है ना उन तीनों के बारे में कि आप क्या क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, तब अब एक जन की फोटो हाथ में लीजिए, ठीक है। अब वो फोटो को देख के आपको लिखना है, प्लीज जो भी कुछ हम लोग लिख रहे हैं, जो भी हमारी राइटिंग की प्रैक्टिस है, हम ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं तो, या हम आज वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, वी हैव टू डू इट इन अ जर्नल विद अ पेन। हम कंप्यूटर पे नहीं करेंगे, बिकॉज एटलीस्ट हमारी जो जनरेशन है, वी हैव स्टडीड विद पेन एंड नोटबुक्स। हम कंप्यूटर पे काम नहीं करते थे, तो हमारी जो भी पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी वो पेपर पेन पे ही आएगी, ठीक है। सो वी विल यूज अ पेपर एंड पेन ओनली। तो आप अपना जर्नल में लिखना शुरू करिए, उनके लिए 5 ब्लेसिंग्स लिखेंगे। सपोज आप अपनी मम्मी के लिए लिख रहे हैं, तो मम्मी की फोटो लेंगे हाथ में, ठीक है, उनको देखेंगे और फिर थैंक यू मम्मी फॉर दिस, थैंक यू मम्मी फॉर दिस, ऐसे करके आपको 5 लिखना है। फिर आप, अच्छा, फिर एक फोटोग्राफ का जब हो जाएगा, तब उनकी फोटो को देखिए, हाँ, फोटो को देख के बहुत दिल से बोलिए, आई लव यू सो मच मम्मी, आई लव यू, आई लव यू बिकॉज आप हमेशा मेरे को सपोर्ट किए, आप हमेशा मुझे इतना प्यार दिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसे करके बहुत खुश होके उनको थैंक यू बोलिए। देन गो टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ, उसमें भी आप वैसे ही करिए, उनकी फोटोग्राफ देख के 5 ब्लेसिंग्स लिखिए और फिर उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलिए, बहुत खुश होइए, बोलिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू हैव डन, आई लव यू सो मच, ठीक है। फिर फॉर द थर्ड पर्सन, ऐसे करके आपके तीनों के लिए आज करना है, ठीक है। दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे। अब और क्या करना है, लेट्स सी। When you have finished your list for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words, thank you, and the person name. यस, थैंक यू Thank हेली। ये हेली जो है रोंडा बर्न की डॉटर का नाम है, वो अपने डॉटर के लिए एग्जाम्पल दे रही है। अब आज आपको क्या करना है, आपको फोटोग्राफ जब आप लिख लिए ना, उसके बाद आपको वो फोटो को कहीं ऐसी जगह रखना है जहां आप उनको बार बार देख सकते हैं। तो अगर आपके फोन में है, तो आप फोन में भी उनको बार बार देख सकते हैं, कम से कम 3 बार, कम से कम कल दोपहर 3 बजे तक आपको वो फोटोज को 3 बार देखना है, और तीनों फोटो को बार बार देखकर बोलना है थैंक यू। अब जैसे अगर आप मम्मी के लिए ले रहे हैं, तो थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू, अगर कोई फ्रेंड है तो कोई उनका नाम लेकर, ऐसे करके आपको बार बार, आपको कम से कम 3 बार आपको वो फोटोज को हाथ में लेना है और उनको थैंक यू बोलना है, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not the part of the requirement of this book, but you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationships as many times as you want. The more you can be grateful for the magical relationship, the more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि
आप चाहें तो आप ये प्रैक्टिस को रोज कर सकते हैं, रोज सेम लोगों पे कर सकते हैं, रोज अलग अलग लोगों पे भी कर सकते हैं, बट रोज 3 ही लोगों को लेना है। ये नहीं कि आज 1 को कर दिया, कल 2 को कर दिया, फिर कल 3 को कर दिया, नहीं, रोज ही 3 लोगों पे ये प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज 3 इज अ मैजिक नंबर ऑफ क्रिएशन। ठीक है, तो जब आप 3 लोगों पे करते हैं तो एक तो आपकी ग्रैटिट्यूड की भावना बढ़ती है, देन यू आर क्रिएटिंग गुड रिलेशनशिप्स विद देम। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. Magic practice number 3. Magical relationships. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Number 4, begin each sentence with the magic words thank you, include their name and what you are specifically grateful for. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words thank you and their name. Thank you, Haley. Before you go to sleep, take the magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब वो हमारी काउंट आवर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस जो हम लोग रोज सुबह कर रहे हैं, एंड मैजिक रॉक की प्रैक्टिस जो रोज रात को करें, वो हम लोगों को कंटिन्यू करना है। फिर आज क्या करना है, वी हैव टू टेक फोटोग्राफ्स ऑफ 3 ऑफ आवर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स। उनके बारे में हमको जितनी अच्छी बातें याद आती है ना, उनको बैठ के हम लोगों को याद करना है। टेक योर टाइम, टेक अबाउट हाफ एन आवर टू डू द प्रैक्टिस। आप मतलब उनके लिए आपको जो कुछ उनके मतलब उनमें क्या टैलेंट है, वो उनको क्या क्या अच्छा लगता है, आप लोगों ने क्या क्या शेयर किया, उन्होंने आपको कभी सपोर्ट किया, कभी हेल्प किया, उन्होंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ को याद करिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक एक फोटोग्राफ को लेंगे और तीनों फोटोग्राफ्स की प्रैक्टिस साथ में ही करनी है, अलग अलग नहीं करना है। एक फोटोग्राफ को लीजिए, फिर उसके लिए लिखना शुरू करिए थैंक यू नेम फॉर व्हाट, थैंक यू नेम फॉर व्हाट। जब 5 लिख लेंगे तो लुक एट द फोटोग्राफ अगेन, बी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, दिल से बोलिए आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी, थैंक यू फॉर डूइंग सो मच फॉर मी। ऐसे करके वो एक पर्सन का प्रैक्टिस को खत्म करिए। फिर नेक्स्ट पे आइए, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन पे आइए। ऐसे करके आपको तीनों लोगों के लिए ग्रेटफुल होना है। उसके बाद आपकी जो फोटोग्राफ्स हैं, आपने जो फोटोग्राफ सिलेक्ट करी है, उनको अपने साथ रखिए या कोई ऐसी जगह रखिए जहां आप उसको बार बार देख पाएंगे। कम से कम दिन में 3 बार उनकी फोटोग्राफ्स को देख के बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलना है। ठीक है, सो दैट इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। ऑलराइट, अब कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आया है तो वी कैन डिस्कस। जस्ट आई वांट टू आस्क, जो 3 टाइम्स है उसमें लिखना हमको खाली एक ही बार है, 3 बार हमको खाली फोटो देख के उनको बोलना है, लिख लिया उसके बाद 3 बार फोटो देख के बोलना है, लिखना एक ही बार है। ठीक है, चलो अब इफ यू ऑल हैव टाइम, तो आई हैव written a kind of meditation for our relationships. Just close your eyes and we can just do a small meditation for our relationships today. ठीक है, close your eyes
सीधा बैठिएगा, हाँ प्लीज सिट स्ट्रेट, कमर सीधी करिएगा, आंखें बंद करिएगा, एंड जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड deep breath out. Okay, then again take a deep breath in, hold 1 2 3 4, and take a deep breath out. One last time, take a deep breath in, hold 1 2 3 4, and take a deep breath out. ओके, अब हमारा मन शांत हो गया है, तन शांत हो गया है। अब अपने बचपन में जाइए, एकदम जब आप बहुत ही छोटे थे, एकदम बेबी। इमेजिन करिए वो टाइम जब आप अपनी माँ की कोख में आए थे। इमेजिन करिए उनकी खुशी को, कितनी खुश हुई थी वो। वाह, कितना स्नेह, उसी समय से उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार था, कितना पौष्टिक खाना खाया, अपना कितना ध्यान रखा कि आप एक हेल्दी बेबी बॉर्न हो सके। फिर 9 महीने आपके लिए वेट किया उन्होंने, आपके जन्म के बाद आपको दूध पिलाया, एक टक आपको देखती थी, उनकी आंखें आपको कितना प्यार करती थी, आपका कितना अच्छे से पालन पोषण किया उन्होंने, आपको कितना कुछ सिखाया, कितना कुछ आपके लिए किया उन्होंने। She was your first friend, she was your first teacher. आज भी आप, उनकी आंखें आपको एक टक देखती हैं, आपके लिए वेट करती हैं, आप उनकी आंखों में अपने लिए कितना प्यार पाते हैं। भगवान जी, ऐसे ऐसी ममता की मूरत मेरी मम्मी के लिए बहुत 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 थैंक यू। अब आप अपने पापा के बारे में सोचिए, दिन रात उन्होंने कितनी मेहनत करी आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, हर इच्छा हर जिद को पूरा करने के लिए सुबह से लेके रात तक मेहनत करते थे, आपके साथ खेलते भी थे, आपको शायद कंधे पे बैठा के घुमाते भी थे, आपके बर्थडेज पे कोई भी स्पेशल ओकेजन पे आपको बाहर भी लेके जाते थे। कितना कुछ उन्होंने किया आपके लिए, आपको प्रोत्साहन दिया, आपको एनकरेज किया, आपको उम्मीद दी, हिम्मत दी, इस लायक बनाया कि आप अपने ऊपर विश्वास कर सकें। आज कभी भी आप गिरते थे तो आपको आगे बढ़कर उन्होंने उठाया, जो आज भी रोज सुबह शायद आपसे पूछते होंगे, बेटा आज तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं। भगवान जी, इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे पापा देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मुझे मेरे भाई बहन देने के लिए थैंक यू। उनके साथ ही तो मैं बड़ी हुई, उनके साथ खेली कूदी, पढ़ाई करी, लड़ाई झगड़ा भी किया हमने। वो मेरे पहले फ्रेंड्स थे, और सुबह उठती थी तो मेरी आंखें सबसे पहले उन्हीं को टटोलती थी। उन्होंने क्या खाया, अपने प्लेट पे आंख कम होती थी, उनके प्लेट पे आंखें ज्यादा होती थी। हर तरह से कंपटीशन भी किया, प्यार भी किया। कितना आज भी हम में कितना प्यार है भगवान जी, मेरे इतने अच्छे भाई बहन के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। याद करें आपके परिवारजनों को, दादा दादी, नाना नानी, चाचा बुआ, मामा मासी, सबको याद करें। कोई आपको कहानी सुनाता था, कोई झूला झुलाता था, कोई पार्क में घुमाने ले जाता था, कोई खाना भी खिलाता था अपने हाथों से, तो कोई मम्मी पापा से छुपकर आपको चॉकलेट भी खिलाता था। भगवान जी, ऐसे परिवार के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। आपके कजिन्स जिनके साथ आपने छुट्टियां बिताई, खूब खेले, स्पोर्ट्स भी खेले होंगे, मूवीज देखने गए होंगे, बुक शेयर किए होंगे, हॉबीज परस्यू किए होंगे,
ऐसे कजिन्स के लिए आज भगवान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, मम्मी तो क्लास में बैठा के बाहर निकल गई ना। किसने हमारे आंसू पोंछे, किसने हमको हाथ पकड़कर गाइड किया, इस लायक बनाया कि दुनिया को फेस कर सके, अपने पाँव पे खड़े हो सके? हमारे टीचर्स ने। हमारे टीचर्स जो हमारी कैपेबिलिटीज को हमसे बेटर जानते थे, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी। भगवान जी, मेरे लाइफ में इतने अच्छे मेंटर्स, गुरु, टीचर्स, गाइड्स को लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब याद करें उन लोगों को जो आपके शैतानी में आपका साथ देते थे। लंच बॉक्स खुलने से पहले ही खाना खत्म हो जाता था, क्लास में चिट्स पास करना, चीटिंग करना, फोन में घंटों बात करना, फर्स्ट क्रश के बारे में बात करते करते खूब गिगल करना, हर चीज में सपोर्ट करना, आपकी गलतियों को ढकना और उनको टीचर्स से, पेरेंट्स से छुपाना। भगवान जी, ऐसे फ्रेंड्स के लिए बहुत 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 धन्यवाद। भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बड़े हो गए, ऑफिस जाने लगे। ऑफिस में भी तो किसी ने काम करना सिखाया ना हमको। भगवान जी, वैसे सुपीरियर्स के लिए, बॉस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन कलीग्स के लिए थैंक यू भगवान जी, जिन्होंने उस वर्क एनवायरनमेंट को खुशहाल बनाया, मेरा मन लगे, मुझे अपना फ्रेंड समझा, अपनाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हमारी शादी हो गई, शादी होके ससुराल आए हैं, सास ससुर मिले हैं, माँ बाप जैसा प्यार करने वाले सास ससुर मिले हैं। बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, जो मेरा कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं, मेरी सारे शौक को पूरा करते हैं, मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, मेरे सुख दुख का हर तरह से ध्यान रखते हैं। थैंक यू भगवान जी, माँ बाप जैसे सास ससुर देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मेरे ननद, जेठ, देवर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सबके लिए थैंक यू, जिन्होंने मुझको अपनाया, अपने गुट में मुझको शामिल किया, मुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, अपने परिवार का हिस्सा समझा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माय फैमिली भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, मेरे बच्चों के लिए, मेरे जिगर के टुकड़ों के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, जिनको देखते ही मेरे हृदय में स्नेह का सागर उमड़ पड़ता है। रोज इतने प्यारे मेरे बच्चे, राज दुलारे मेरे बच्चे, भगवान जी, ऐसे बच्चों के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। अब याद करिए उन लोगों के लिए जो अपना घर परिवार छोड़ के आते हैं, हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। डोमेस्टिक हेल्प्स, कुक्स, दरवान, माली, स्वीपर्स, ड्राइवर्स, पियोन्स, उन सभी लोगों को याद करिए जो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। वो हैं तो हम अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाते हैं। उन लोगों के लिए आज बहुत बहुत थैंक यू बोलिए, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भगवान जी, मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू, जो हर सुख दुख में मेरा साथ देते हैं, मुझे खूब प्यार करते हैं, मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, मुझे बेहतर से और बेहतर और बेहतरीन बनाते हैं। थैंक यू गॉड, thank you so much, thank you for blessing me with such amazing relationships, such amazing friends, such amazing family. Thank you God, thank you, thank you, thank you. I hope जितना भी हमने कुछ सोचा है
उससे आप लोगों को आज की प्रैक्टिस में कुछ मदद मिलेगी, कैसे हम लोग उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर पाएंगे। ठीक है, एंड नाउ लेट अस डू अ प्रेयर फॉर द डे। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, मुझे सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू, मुझे इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं माफ कर सकूं लोगों को और मैं माफी मांग भी सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाले मम्मी पापा देने के लिए, इतना प्यार करने वाला जीवन साथी देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू, इतने अच्छे दोस्त देने के लिए थैंक यू, लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार के देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट, फाइन, हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने के लिए थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, मेरे आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू, इन सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू भगवान जी। आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। Okay, let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ और बहुत दिल से बोलिए, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I release myself of anger, hate, and bitterness. I am free. I release myself of anger, hate, and bitterness. I am free. I radiate confidence and bring the best game in all I do. I radiate confidence and bring the best game in all I do. I exude kindness and love in my heart. I exude kindness and love in my heart. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. आज एक और प्रैक्टिस करिए, कोई भी एरिया में, कोई भी रिलेशनशिप की, कोई एक रिलेशनशिप ऐसा लीजिए जिसमें आपको थोड़ा चैलेंज लगता है, जहां थोड़ा ब्रेकडाउन है, जहां पे आप जिसको सुधारना चाहते हैं। ठीक है, उस रिलेशनशिप के लिए ट्राई एंड फाइंड 10 ब्लेसिंग्स। ठीक है,
उस रिलेशनशिप के लिए 10 ब्लेसिंग ढूंढिए और 10 ब्लेसिंग्स लिखिए। आप जैसा बताया गया वैसे भी लिख सकते हैं, थैंक यू नाम लिखकर, फॉर वॉट आप वैसे लिख सकते हैं, नहीं तो जैसे हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस पर्सन बिकॉज ऑफ सो एंड सो थिंग, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। कोई के साथ भी चैलेंजिंग हो सकता है, आपको लगता है आपके बच्चों के साथ आपको इम्प्रूव करना है, इन लॉज के साथ करना है, कोई बॉस के साथ करना है, या कोई फ्रेंड के साथ हो सकता है, भाई किसी के भी साथ आपको लगता है जहां की आपको थोड़ी उस रिलेशनशिप में और रोशनी लेकर आनी है, आप उस रिलेशनशिप के लिए आज 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे। ठीक है, दिस इज वन एडिशनल असाइनमेंट टुडे। ठीक है, एंड जो हमने परसों लिखा था 5 मिनट का टाइमर लगा के, लव यू मम्मी एंड लव यू पापा, 5 मिनट लव यू मम्मी, 5 मिनट लव यू पापा, ये आज वापस से हम लोगों को लिखना है। ठीक है, सो दिस इज आवर असाइनमेंट फॉर टुमारो। कल हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे सारे असाइनमेंट्स को जो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। कल वापस हम लोग इसी टाइम में मिलेंगे। हैव अ वेरी वेरी गुड डे, बाय बाय। थैंक यू दीदी फॉर रीडिंग सो वंडरफुली फॉर अस। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस। Thank you आप so लोग much. इतना पेशेंटली सुनते हैं मेरे को, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. Thank you.